Hello students, very good morning to all of you. I am your English teacher Mr. Devesh Singh. Today in this video, I am going to explain this chapter. How hop, skip and jump. The chapter name is hop, skip and jump. Now students, let's see this chapter. Hop, skip and jump. This is a very famous game in our country, not only in our country but also in this world, because this game take very short place to play it, so the children prefer it to play this game because there is problem to play the games in streets or outside of the house. So this is a game that can be played inside of the room or also outside of the room. Now you see, a street game is played on the streets rather than in an area especially prepared for it. It is said here that the street game is played on the street. जो स्ट्रीट गेम होता है उसे स्ट्रीट्स में खेला जाता है, जहाँ पे स्पेशली एक एरिया उसके लिए बना रहता है. It is usually a simple playtime activity that children do in their neighborhood. लेकिन यह एक ऐसा गेम है, एक ऐसा प्ले टाइम एक्टिविटी है जो चिल्ड्रेन अपने पड़ोस में कहीं भी इसे सामान्य रूप से खेल सकते हैं. घर में, घर के अंदर, घर के बाहर, anywhere they can play it. There is no requirement for any street or any place, any big open place to play this game. So this is a very playtime activity for the children to play it anywhere in their neighborhood. The one street game every little child in India has played in Steppu, Ekhat, Dukhat or Kit. Here it is said about this game that one street game every little child in India has played. हमारे इंडिया में जो प्रत्येक बच्चे हैं वो स्ट्रीट गेम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, खेलते हैं. और इंडिया में खेले जाने वाली गेम में स्टेपू है, एकट है, दुखट है, किटकिट है. ये सब ऐसे गेम है जो हमारे देश का स्ट्रीट गेम है जो सारे बच्चों के द्वारा खेला जाता है. किटकिट इज़ प्लेड ऑल ओवर इंडिया. इसमें से किटकिट तो इतना फेमस है जो पूरे इंडिया में खेला जाता है. इट इज़ नोन एज कुंटे विले इन कर्नाटका एंड दिस गेम किटकिट इज़ नोन एज कुंटे विले इन कर्नाटका. कर्नाटका में से कुंटे विले के नाम से जाना जाता है. पांडे इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पांडी के नाम से जाना जाता है. टकुडू विला इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टकुडू विला के नाम से जाना जाता है. एंड खाने इन कश्मीर, कश्मीर में से खाने के नाम से जाना जाता है. मीन्स यू कैन से स्टूडेंट्स हियर एंड यू कैन नोटिस दैट इन ईच पार्ट ऑफ आवर कंट्री दिस गेम इज़ नो इन डिफरेंट नेम. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नेम in our country for this game, and it is popular in our country in different type of name. The game is called hopscotch in English, but when you talk about this game, that its main name that is spreaded in this world is hopscotch. In English it is known as hopscotch. अंग्रेजी में पूरे विश्व में जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पे इसे हॉपस्कॉच के नाम से जाना जाता है. तो स्टूडेंट आप इसे कह सकते हैं दिस गेम नेम इज़ हॉपस्कॉच. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड.
And for the children, this game is a part of their childhood, because this is a very famous, this is a very popular favorite game for the children, because they start this game inside of the house whenever there is no place for them to play it outside of the house. They start to play it to shut the door, and if there is a little space in their room, they can play this game. So this is a very popular or favorite game for the children. Okay, uh, it is a good game for children because it needs very little space and can be played both outdoors and indoors. एक बच्चों के लिए काफ़ी एक अच्छा गेम है, बहुत ही एक बेहतर गेम है, जिसे इनसाइड, इंडोर्स और आउटडोर्स कहीं भी इसको खेला जा सकता है। बच्चे इसे कहीं भी, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी इस गेम को खेल सकते हैं। अचाक इज यूज टू ड्रा ग्रिड, और ग्रिड बनाने के लिए जो लाइनिंग जो बना हुआ है, आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर यू कैन सी हियर इन द फिगर, दिस इज अ ग्रिड। तो टू मेक अ ग्रिड द चिल्ड्रेन यूज chalk of 8 squares on the ground with numbers from 1 to 8 as in the picture. You can see in this picture, this is a grid जिसमें 8 नंबर्स बने हुए, अलग अलग स्क्वायर में नंबर्स बने हुए। ग्राउंड पे बच्चे इस चीज़ को बनाते हैं और बना करके फिर इसी ग्रिड में बच्चे इस गेम को प्ले करते हैं। टू प्ले द गेम अ प्लेयर नीड्स अ मार्कर। इस गेम को खेलने के लिए बच्चे को एक मार्कर की ज़रूरत पड़ती है। मार्कर में स्टूडेंट्स वो मार्कर नहीं जो आप समझ रहे हैं लिखने वाला, राइट करने वाला मार्कर नहीं। एक मार्कर मतलब यहाँ पे हो गया एक स्टोन का पीस हो गया, एक पत्थर का टुकड़ा हो गया, जिससे बच्चे खेलते हैं पैर से मार मार के। जो लोग इस गेम को खेले वो समझ सकते हैं। एक टुकड़ा होता है, पीस ऑफ स्टोन होता है, जिससे पैर से मार मार के खेला जाता है, उस स्क्वायर में डालने के लिए, इस नंबर में डालने के लिए। ठीक है ना। सच एज अ फ्लैट स्टोन, अ स्मॉल पीस ऑफ टाइल और सेल। एक टाइल का स्मॉल पीस भी हो सकता है, एक पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, जिससे बच्चे इस खेल को खेलते हैं। द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन। जो स्टार्टिंग लाइन रहता है उसके पीछे प्लेयर्स खड़ा रहता है। एंड टॉसेस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर, और फिर वहाँ से खड़ा होकर के वो फर्स्ट स्क्वायर में उसको टॉस करता है, उसको फेंकता है। देन शी हॉप्स ऑन 1 फुट फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर टू द सेकेंड वन, और फिर उसके बाद से जो प्लेयर्स, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स को इंडिकेट किया गया है, वो 1 फुट मीन्स एक पैर से, एक टांग से वो फर्स्ट स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर की तरफ वो कूदता है, हॉप करता है, जंप करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, दूसरे रो में जाने से पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड मीनिंग को हम देख लिए। यहाँ पे वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा देख लीजिए। आइए, द वर्ड मीनिंग इज ग्रिड। व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड इज अ pattern of straight lines usually crossing each other to form a square. पैटर्न ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ये जो यहाँ पे हमने आपको बताया, ये जिस चीज़ को, ये आपका ग्रिड है। ठीक है ना। एक पैटर्न है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें क्रॉस करके स्क्वायर क्रॉस करके गेम खेला जाता है। सेकेंड है मार्कर। मार्कर जो पत्थर का एक टुकड़ा होता है, इस तरह से एक पत्थर का एक टुकड़ा रहेगा, जिसको बच्चे मार मार के इसको आगे की तरफ स्क्वायर्स में जो है ढकेलते रहेंगे बच्चे। ठीक है ना। ऐसे जो स्क्वायर्स बने रहेंगे, इसको मार मार के उसमें करेंगे, एक मार्कर होता है। ओके, लास्ट मीनिंग आपका है एजिलिटी। एजिलिटी क्या होता है? एजिलिटी जो मीन्स होता है एबिलिटी टू मूव विद ईज एंड क्विकनेस। जो काफ़ी आसानी से, काफ़ी क्विकनेस के साथ आपकी जो मूव करने की जो प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं एजिलिटी। ठीक है ना। अब निम्बलनेस जो है, निम्बलनेस मीन्स होता है स्विफ्टनेस का, आपका एक एक्टिविटी जो स्विफ्ट है, जो तेज एक्टिविटी है। लाइटनेस ऑफ मूवमेंट, जो आपका मूवमेंट का जो लाइटनेस है, इस सबको बोलते हैं निम्बलनेस। फिर है वेरिएंट। वेरिएंट वर्जन होता है, वर्जन को वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो दीज आर द नेम दैट इज़ यूज्ड हियर इन दिस गेम,
Okay, so students, here you have to learn the word meanings to clear the concept of this chapter, because you know that without the word meaning it is impossible to clear the concept of this chapter. So you will learn it, and in the next video I will explain you the second and third row to clear you the story of this chapter. Anyway, this is a very interesting game for the children. The children who used to play this game, they are also very happy to see such type of chapter, such type of story in their book. Students are also very happy, so you read it very attentively, you focus yourself, rest up. Okay, in the next video. Goodbye everyone.